لوگوں کی توجہ پانے کو خدا کے مختلف انداز۔ حصہ سوئم، حزقییل کا خواب، مکروہات عظیم کا منظر۔ بچوں، خدا نے حزقییل سے کئی عجیب کام کروائے، یوں وہ گرما گرم خبروں کا ایک موضوع بن گیا اور ساتھ ہی لوگوں کی نظر میں تضحیک کا نشانہ بھی ٹھہرا۔ مگر خدا نے اسے اپنی شان عظیم کا روح پرور نظارہ بھی دکھایا۔ تب خدا کی شان کا جلوہ دیکھنے کے 1 سال بعد حزقییل نے پھر ایک خواب دیکھا۔ اس دفعہ اسے کیا نظر آیا؟ حزقییل 8 باب 1 سے 3 آیت۔ اور چھٹے برس کے چھٹے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور یہودا کے بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے کہ وہاں خداوند خدا کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا۔ تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانند نظر آتی ہے، اس کی کمر کے نیچے تک آگ اور اس کی کمر کے اوپر تک جلوہ نور ظاہر ہوا، جس کا رنگ سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا تھا، اور اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ سی بڑھا کر میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑا، اور روح نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا اور مجھے الہی رویا میں یروشلم میں شمال کی طرف اندرونی پھاٹک پر، جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت بڑکاتی ہے، لے آئی۔ بچوں، پچھلی بار جب حزقییل نے خواب دیکھا تو اس وقت وہ اپنے جیسے کچھ یہودی اسیروں کے ساتھ تھا جو اسیر کر کے بابل لے جائے گئے تھے۔ حزقییل نے اسی وقت ان پر ظاہر کر دیا کہ اسے خدا کا جاہ و جلال نظر آیا ہے۔ یہ اس لیے کہ شاید وہ دل سے خدا کا خوف مانے اور اس سے امیدیں باندھیں۔ مگر اس بار خدا نے اسے ایسے وقت میں رویا دی جب وہ اپنے گھر میں یہودا کے کچھ بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ خدا نے یکایک اس کی روح کو اٹھایا اور یروشلم جو وہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھا وہاں لا کھڑا کیا، اور اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ سی بڑھا کر میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑا۔ آخر اس بار خدا نے کیوں جان بوجھ کر ایسے وقت کا انتخاب کیا اور حزقییل کی روح کو اٹھا کر کیوں یروشلم لے گیا؟ کیونکہ اس وقت تک ابھی یروشلم میں ہیکل کو گرایا نہیں گیا تھا۔ یہ وہ ہیکل تھا جسے داؤد نے خدا کے نام کے لیے بنانے کی خواہش کی تھی، اور وہی ہیکل جسے داؤد کے بیٹے سلیمان نے 7 سال کی طویل مدت میں بے پناہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بنایا تھا۔ خدا آخر کیوں آنے واحد میں حزقییل کو بابل سے اٹھا کر ہزاروں میل دور یروشلم کو لے گیا؟ خدا نے حزقییل کو مقدس ہیکل میں کی جانے والی مکروہات یوں دکھائیں جیسے ٹی وی پر لائیو شو چل رہا ہو۔ یوں حزقییل پر ذمہ داری عائد ہو گئی کہ لوگوں کو ہیکل کے گرا دیے جانے کے اسباب بتائے۔ حزقییل 8 باب 5 سے 6 آیت۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا، اور میں نے اس طرف آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مذبح کے دروازہ پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے۔ اس نے پھر مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد،
تو ان کے کام دیکھتا ہے، یعنی وہ مکروہات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں، تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاؤں، لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ بچوں، خدا کا گھر تو مقدس تھا، مگر اب قربان گاہ کے پہلو میں انہوں نے ایک بت خدا بسا لیا۔ بچوں، اسرائیلی جب مصر سے نکلے، کوہ سینا کے دامن میں سونے کا ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کو اپنے آقا کا خطاب دیا، اس کی پوجا میں یہ کہتے ہوئے غرق ہوئے کہ یہی بچڑا ہمارا دیوتا ہے۔ اب پھر انہوں نے اپنے لیے دیوتا گھڑے اور خدا کے تخت کی جگہ گاڑ لیے۔ خدا نے کہا، وہ مکروہات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں، تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاؤں۔ خدا نے یہ بھی کہا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ بچوں، ایک لمحہ پہلے حزقیال ہیکل کے باہر حیران سا کھڑا تھا، تبھی خدا اسے ہیکل کے اندرونی صحن میں لے آیا۔ حزقیال 8 باب 7 سے 12 آیت۔ تب وہ مجھے صحن کے پھاٹک پر لایا، اور میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار میں ایک چھید ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، دیوار کھود۔ اور جب میں نے دیوار کو کھودا تو ایک دروازہ دیکھا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ۔ تب میں نے اندر جا کر دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نوع کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکروہ جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بت گردا گرد دیوار پر منقش ہیں، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص ان کے آگے کھڑے ہیں، اور یازنیہ بن صافن ان کے وسط میں کھڑا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بخور دان ہے، اور خوشبو بخور کا بادل اٹھ رہا ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریکی میں، یعنی اپنے منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا، خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ بچوں، خدا حزقیال کو دکھانا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص اس خفیہ کمرے میں چپکے خوشبوئیں سلگا رہے تھے، بے حقیقت دیوتاؤں کے بےہودہ خد و خال کی پوجا پاٹ میں غرق ہو رہے تھے۔ یہ 70 بزرگ اسرائیل کے راہ دکھانے والے تھے۔ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب موسیٰ کوہ سینا پر چڑھا تھا؟ جب خدا نے لوگوں سے ایک عہد باندھ لیا تو موسیٰ سے کہا کہ اپنے ساتھ 70 بزرگوں کو لے کر پہاڑ پر آ جائے۔ اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ خروج 24 باب 10 سے 11 آیت۔ اس وقت خدا بہت خوش تھا، کیونکہ خدا کو اسرائیل کے ساتھ شادی کے کھانے کی دعوت بہت مرغوب ہے۔ مگر اب
इस वक्त हिजकिय्याल की निगाहों के सामने फिर 70 बुजुर्ग जमा थे। वो कह रहे थे, खुदावंद यहोवा ने यहूदा को बेसहारा छोड़ दिया है, इसलिए वो अजनबी देवताओं की पूजा करने पर मजबूर हो गए। वो समझने लगे कि दीवारों पर उभरी ये मूर्तियां उन्हें तबाही से बचा लेगी। हिजकिय्याल 8 बाब 13 से 14 आयत। और उसने मुझे ये भी फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावंद के घर के शुमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। तमूज के मानी हैं देवी। औरतें कनानियों की पैरवी में तमूज देवी पर बुत परस्तों की एक माफूक कुल फितरत रस्म की अंजामदही के लिए मातम करती थीं। ये बुत परस्ती का एक अंदाज था। हिजकिय्याल 8 बाब 15 से 17 आयत। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा है? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन में ले गया और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के दरवाजा पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं और मशरिक का रुख करके आफताब को सजदा कर रहे हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा है? क्या बनी यहूदा के नजदीक ये छोटी सी बात है कि वो ये मकरूह काम करें जो यहाँ करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मुल्क को जुल्म से भर दिया और फिर मुझे गजबनाक किया। और देख, वो अपनी नाक से डाली लगाते हैं। बच्चों, मज़बा के दाखिली दरवाजा के शुमाल की तरफ गैरत की मूरत का मुजस्मा था। इसराइल के 70 बुजुर्ग वहाँ चोरी छुपे रेंगने वाले कीड़ों, नापाक जानवरों और इसराइल में बसी हर तरह की मूर्तियों की पूजा में मसरूफ थे। खुदा के मस्कन के शुमाली दरवाजा की समत में औरतें बैठी तमूज पर मातम कर रही थीं। और अब 25 अफराद ऐसे नजर आए कि मशरक की तरफ सूरज को सजदा किए, पुश्त खुदा के मस्कन की तरफ किए पूजा में गरक थे। ये 25 अफराद कौन थे? मस्कन में रोजाना 24 काहन खुदा की खिदमत करते। 25वां फर्द बड़ा काहन कहलाता। चुनाचे इन 25 अफराद पर कहानत के पूरे निजाम का दारोमदार था, मगर ये अपने दिल, अपने वजूद की अंदरूनी गहराई से खुदा की इबादत नहीं करते थे। इसके बरक्स मशरक को मुंह किए, हैकल की तरफ पुश्त किए, सूरज के आगे झुके थे। ये खुदाए खालिको मालिक की इबादत नहीं थी। ये लोग जाहिर में तो खुदा के खिदमतगार थे, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। इसीलिए खुदा की नजर में ये हरकत बहुत नागवार थी। ये हरकत तो खुदा के जाहो जलाल के मुतलक खिलाफ थी। खुदा ने हिजकिय्याल को ख्वाब में अपना मस्कन दिखाया। जब खुदा ने यरूशलेम में हैकल के अंदर ये मकरूह काम होते देखा, उसका दिल बहुत दुखा। उसने कहा, ये इसीलिए ऐसा करते हैं ताकि मैं अपने मकदस को छोड़कर उससे दूर हो जाऊं। ये मेरा मस्कन है, मेरे नाम की जगह, और मैं 400 सालों से यहाँ रहता रहा हूँ। मगर इसराइली नहायत मकरूह काम यहाँ कर रहे हैं, जिनकी वजह से मैं अपने ही मस्कन से दूर निकल जाऊंगा।
खुदा को दुख था कि लोग उसकी बात ही नहीं समझते, इसलिए उसने हिजकिय्याल को बुलाकर कहा, जरा ये देख लो और तब जाकर घर में अपने गिर्द बैठे बुजुर्गों को भी बताओ कि यहाँ मेरे मस्कन में दरपर्दा हो क्या रहा है। खुदा की शान और शौकत इस बात का तकाजा करती है कि मुकद्दस मकाम पर ऐसी बेहुदा खराफात को रायत ना दी जाती। खुदा को अपनी शानदार हस्ती के जाहो जलाल की खातिर अदालत करनी ही थी। हिजकिय्याल 8 बाब 18 आयत। बस मैं भी कहर से पेश आऊंगा, मेरी आंख रायत ना करेगी और मैं हरगिज रहम ना करूंगा, और अगरचे वो चिल्ला चिल्ला कर मेरे कानों में आहो नाला करें तो भी मैं उनकी ना सुनूंगा। खुदा का जाहो जलाल अपने मस्कन पर से उठ गया और खुदा की रास्तबाजी शरीरों का मुहासबा करने को मचल उठी। इंतहाई मायूसी के आलम में खुदा के दिल में अपने लोगों और अपने मस्कन के लिए रहम और शफकत के जज्बात दब कर रह गए। तबाही का फरिश्ता हिजकिय्याल 9 बाब 1 से 7 आयत। फिर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर मेरे कानों में कहा कि उनको जो शहर के मुंतजम हैं नजदीक बुला, हर एक शख्स अपना मोहलक हथियार हाथ में लिए हो, और देखो 6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शमाल की तरफ है चले आए, और हर एक मर्द के हाथ में उसका खून रेज हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कतानी लिबास पहने था और उसकी कमर पर लिखने की दवात थी। सो वो अंदर गए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए, और इस्राएल के खुदा का जलाल करोबी पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया, और उसने उस मर्द को जो कतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा, और खुदावंद ने उसे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हाँ यरूशलेम के बीच से गुजर, और उन लोगों की पेशानी पर जो उन सब नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और रोते हैं निशान कर दे। और उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से फरमाया, उसके पीछे पीछे शहर में से गुजर करो और मारो, तुम्हारी आंखें रायत ना करें और तुम रहम ना करो, तुम बूढ़ों और जवानों और लड़कियों और नन्हे बच्चों और औरतों को बिल्कुल मार डालो, लेकिन जिन पर निशान है उनमें से किसी के पास ना जाओ और मेरे मकदस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुजुर्गों से जो हैकल के सामने थे शुरू किया, और उसने उनको फरमाया कि हैकल को नापाक करो और मकतूलों से सहनों को भर दो, चलो बाहर निकलो। सब निकल गए और शहर में कत्ल करने लगे। बच्चों, क्या आपको याद है सफनिया नबी ने किन लोगों के मुतल्लिक कहा था कि तबाही के टूट पड़ने पर वो खुदा की हिफाजत में रहेंगे? सफनिया 3 बाब 18 आयत। मैं तेरे उन लोगों को जो ईदों से महरूम होने के सबब से गमगीन और मलामत से जेरे बार हैं जमा करूंगा। सफनिया 2 बाब 7 आयत।
اور وہی ساحل یہودا کے گھرانے کے بقیہ کے لیے ہوں گے، وہ ان میں چرایا کریں گے۔ وہ شام کے وقت اسکلون کے مکانوں میں لیٹا کریں گے، کیونکہ خداوند ان کا خدا ان پر پھر نظر کرے گا اور ان کی اسیری کو موقوف کرے گا۔ بچوں، حزقییل نے ان لوگوں کی نشاندہی کی جو یروشلم میں بتوں کی پوجا میں غرق تھے، اور ایک یہ لوگ تھے جن کا صفنیہ نے ذکر کیا کہ وہ پاک ہیکل میں خدا کی عبادت نہ کر پانے پر دکھی تھے، اور جو اس بات پر افسردہ تھے کہ یروشلم میں بت پرستی کیوں کی جا رہی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو خدا سے محبت رکھتے، اس کا خوف مانتے اور سرکش لوگوں کی حالت پر کڑتے تھے کہ وہ خدا کو کیوں نہیں جانتے۔ ان کے متعلق خدا نے بتایا کہ خدا کے تحفظ کی مہر ہو چکی ہے۔ جب تباہی کا فرشتہ ان کے ماتھوں پر لگے خدا کے تحفظ کے نشانوں پر نظر کرے گا تو انہیں مار گرائے بغیر ان کے پاس سے گزر جائے گا۔ بچوں، کیا یہ فسح کی رات ہی کی طرح نہیں؟ مارنے والے فرشتہ نے جن چوکڑوں پر خون دیکھا ان گھروں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اور اب خدا نے کہا، جن کے ماتھے پر نشان نہیں انہیں مارو، میرے مقدس سے شروع کرو اور ان بزرگوں سے جو ہیکل کے سامنے ہیں۔ خدا کی حضوری جدا ہو گئی۔ جب سلیمان نے مقدس ہیکل کو خدا کے لیے مخصوص کیا تو خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا، 1 سلاطین 9:3 آیت۔ اور خداوند نے اس سے کہا، میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہے سن لی، اور اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہاں لگے رہیں گے۔ 1 سلاطین 9:6-7 آیت۔ لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا۔ سلیمان نے لگ بھگ 360 سال پہلے 959 قبل مسیح میں ہیکل کو خداوند کے لیے مخصوص کیا تھا۔ خدا کی نگاہیں رات دن اس کی نگران رہیں، مگر یرمیا نے کہا تھا، نوحہ 2:7 آیت، خداوند نے اپنے مذبح کو رد کیا، اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی۔ کیا آپ کو یاد ہے خدا نے حزقیہ کی بیوی چھین لی تھی تاکہ لوگوں کے لیے تنبیہ ہو؟ حزقییل 24:21 آیت۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے مقدس کو جو تمہارے زور کا فخر اور تمہارا منظور نظر ہے، جس کے لیے تمہارے دل ترستے ہیں، ناپاک کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں جن کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو تلوار سے مارے جائیں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے مسکن سے جدا ہوتے وقت کتنا اداس تھا۔ حزقییل 10:1-3 آیت۔
तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि उस फजा पर जो करोबियों के सर के ऊपर थी, एक चीज नीलम सी दिखाई दी और उसकी सूरत तख्त की सी थी। और उसने उस आदमी को जो कितानी लिबास पहने था फरमाया कि उन पहियों के अंदर जा जो करूबी के नीचे हैं, और आग के अंगारे जो करूबियों के दरमियान हैं मुट्ठी भर कर उठा और शहर के ऊपर बखेर दे। और वो गया और मैं देखता था। जब वो शख्स अंदर गया तब करोबी हैकल की दाहिनी तरफ खड़े थे और अंदरूनी सहन बादल से भर गया। करूबी खुदा के खादिम और उसके कासिद होते हैं। वो खुदा के पाक हैकल की दाएं जानिब उसके आलीशान तख्त के पास हाजिर थे कि सारा अंदरूनी सहन बादलों से भर गया। खुदावंद यहोवा बादलों को अपना रथ बनाता है। ज़बूर 104:3 आयत। यानी बादल खुदावंद यहोवा के रथ की मिसाल हैं। हिजकिय्याल 10 बाब 4 से 5 आयत। तब खुदावंद का जलाल करूबी पर से बुलंद होकर हैकल के आस्ताना पर आया और हैकल बादल से भर गई और सेहन खुदावंद के जलाल के नूर से मामूर हो गया। और करूबियों के परों की सदा बाहर के सहन तक सुनाई देती थी, जैसे कादरे मुतलक खुदा की आवाज जब वो कलाम करता है। क्या आपको याद है खुदावंद यहोवा खेमा इज्तिमा में किस तरह मूसा से बात किया करता था? गिनती 7 बाब 89 आयत। और जब मूसा खुदा से बातें करने को खेमा इज्तिमा में गया तो उसने सरपोश पर से जो शहादत के संदूक के ऊपर था दोनों करूबियों के दरमियान से वो आवाज सुनी जो उससे मुखातिब थी और उसने उससे बातें की। यानी खुदा का जलाल सरपोश पर से जो शहादत के संदूक के ऊपर था दोनों करूबियों के दरमियान कायम था। अब खुदा के फरिश्ते करूबी अंदरूनी सहन में अहकाम के मुंतजर थे। खुदा का जलाल सरपोश पर से जो शहादत के संदूक के ऊपर था करूबियों के दरमियान से निकलकर हैकल के दाखिली दरवाजा पर ठहर गया और अंदरूनी सहन खुदा के जलाल से भर गया। हिजकिय्याल 10 बाब 18 से 20 आयत। और खुदावंद का जलाल घर के आस्ताना पर से रवाना होकर करोबियों के ऊपर ठहर गया। बच्चों, खुदा का जलाल कफारा के ढकने से उठकर अहद के संदूक से जुदा हो गया और खुदा अहद के संदूक पर नसब करोबियों के दरमियान से निकलकर उन करोबियों की तरफ चला जो खास तौर पर उसके इस्तकबाल को आए थे। तब खुदा उस जलाली तख्त पर बैठ गया जिसकी झलक नीलम की सी थी। तब करोबियों ने अपने बाजू फैलाए और मेरी आंखों के सामने जमीन से बुलंद हुए और चले गए और उनके पहिए उनके साथ साथ थे और वो खुदावंद के घर के मशरकी गेट के आस्ताना पर ठहरे और इस्राएल के खुदा का जलाल उनके ऊपर जलवागर था। ये वो जानदार है जो मैंने इस्राएल के खुदा के नीचे नहरे कबार के किनारे पर देखा था और मुझे मालूम था कि ये करोबी हैं। हिजकिय्याल 11 बाब 23 से 25 आयत। और खुदावंद का जलाल शहर में से उठा और शहर के मशरकी तरफ के पहाड़ पर जा ठहरा। तब रूह ने मुझे उठाया और खुदा की रूह ने रोया में मुझे फिर कसदियों के मुल्क में असीरों के पास पहुंचा दिया और वो रोया जो मैंने देखी मुझसे गायब हो गई
और मैंने असीरों से खुदावंद की वो सब बातें बयान की जो उसने मुझ पर जाहिर की थी। अगरचे खुदा ने कह भी दिया, मैं हैकल को तर्क करूंगा, मस्कन को नापाक कहूंगा, मगर मस्कन को छोड़ते वक्त जहाँ कभी उसकी शानो शौकत का बसेरा था, खुदा बहुत उदास हुआ। खुदा का जलाल हैकल की मशरकी समत दाखिली दरवाजा के पास ठहर गया। तब खुदावंद का जलाल शहर में से उठा और शहर के मशरकी तरफ के पहाड़ पर जा ठहरा। बच्चों, खुदा ने जिस मस्कन में अपना नाम रखा उसको तर्क करते वक्त बहुत उदास हुआ, मगर हैकल के बुजुर्गों ने, काहनों ने, आम लोगों ने, औरतों ने मिलकर हैकल में ऐसी बेहुदा हरकत की कि खुदा ने अपने मस्कन को रद्द कर दिया। खुदा बदी की बर्दाश्त नहीं करता। जब हिजकिय्याल की रूह वापस उसके वजूद में आती, जो बुजुर्ग उसके पास पहले से बैठे थे वो पूछते, हिजकिय्याल तुम्हें क्या हो गया था? तुम तो बातें कर रहे थे, तो यकायक कहाँ खो गए? तुम सो क्यों गए? तब हिजकिय्याल उन्हें बता सकता था खुदा किस तरह उसे मुकद्दस हैकल में ले गया और वहाँ क्या क्या गुनाह उसने देखे। तब उनके लिए गवाही होती कि खुदा छुप छुप कर किए जाने वाले सारे गुनाहों से वाकिफ था। खुशक हड्डियों से लदी वादी का नजारा। बच्चों, हिजकिय्याल ने खुदा के जाहो जलाल का नजारा किया और बदी की बेहूदगी भी हैकल में होती देखी। खुदा की रूह ने मस्कन को रद्द कर दिया। अब खुदा हिजकिय्याल को क्या दिखाने के लिए ले जाने को था? हिजकिय्याल 37 पाप 1 आयत। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। इस बार ये मजीद कुछ डरावनी सी बात है। बच्चों, पिछली बार खुदा हिजकिय्याल की रूह को यरूशलेम उठा ले गया था ताकि वहाँ लोगों की सरकशी के सब काम देख ले जो वो मुकद्दस हैकल के अंदर किया करते थे, जिनकी वजह से खुदा ने अपना जलाली मस्कन वहाँ से उठा लिया। इस बार खुदा हिजकिय्याल को बाहर ले गया और एक वादी के बीच ला खड़ा किया। ये वादी किस चीज से भरी पड़ी थी? खुशक हड्डियों से। खुदा हिजकिय्याल को हड्डियां क्यों दिखानी चाहता था? खुदा हिजकिय्याल को क्या बताना चाहता था? हिजकिय्याल 37 बाब 2 से 10 आयत। और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों। खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि
नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशाक हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। यहूदा की महकूमी से पहले खुदा ने यर्मिया की ज़बानी खबरदार किया। यर्मिया 8 बाब 1 से 2 आयत। खुदावंद फरमाता है कि उस वक़्त वो यहूदा के बादशाहों और उसके सरदारों और काहनों और नबियों और यरूशलेम के बाशिंदों की हड्डियां उनकी कब्रों से निकाल लाएंगे और उनको सूरज और चांद और तमाम अजरामे फलक के सामने, जिनको वो दोस्त रखते और जिनकी खिदमत व पैरवी करते थे, जिनसे वो सलाह लेते थे और जिनको सजदा करते थे, बिछाएंगे। वो ना जमा की जाएंगी ना दफन होंगी, बल्कि रूए जमीन पर खाद बनेंगी। बच्चों, ये तमाम हड्डियां इसराइल के मरने वालों को जाहिर करती थीं, क्योंकि जब उन्होंने अपने दिल सख्त कर लिए कि खुदावंद अपने खुदा को नहीं पहचाना, तो वो जिंदगी जो खुदा के वजूद का मजहर थी उनके अंदर से गायब हो गई। चुनांचे ये नहायत ही खुशक हो गई। खुदा ने हिजकियेल की ज़बानी कलाम किया और खुदा की रूह फिर से उन हड्डियों में दाखिल हो गई। चुनांचे उन्हें फिर से जिंदगी की सांसें मिल गईं। वो उठ खड़ी हुई और एक नहायत बड़ा लश्कर बन गईं। बच्चों, खुदा ने हिजकियेल को ये रोया क्यों दिखाई? लोगों को रोया दिखाई जाने का मतलब अक्सर ये होता है कि उन्हें पोशीदा बातों की खबर दी जाए या आने वाले दिनों में रूनमा होने वाले वाकयात की इत्तला पहुंचाई जाए। बिल्कुल हिजकियेल के वाकया की तरह कि वो बाबल में था मगर यरूशलेम के हैकल में होने वाली बेहूदगियों से वाकिफ था। खुदा का वादा है, आखिरी दिनों में वो इसराइल को नया दिल देगा और उनमें नई रूह डालेगा। पत्थर जैसे सख्त और करखत दिल की जगह इन्हें नरम और गुदाज दिल दिया जाएगा। तब वो गुजरे दिनों की हठधर्मी और नाफरमानी छोड़ देंगे, खुदा के एहकाम मानेंगे, खुदा के काम के लिए एक बड़ा लश्कर हो जाएंगे और शैतानी कुव्वतों को तहस नहस कर डालेंगे। खुदा जो कहता है पूरा भी करता है, मगर पूरा करने से पहले उसने आने वाले दिनों की ये सब बातें हिजकियेल को दिखाई, ताकि जब हालात का धारा आगे बढ़े तो याद रहे कि ये सब खुदा की बातें हैं जो पूरी हो रही हैं। हिजकियेल 37 बाब 14 आयत। और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है। यरूशलेम का ख्वाब। हिजकियेल को पहली रोया देखे 20 साल हो चुके थे। क्या उसे कुछ और खास तजुर्बात भी होंगे? हिजकियेल 40 बाब 1 से 4 आयत।
हमारी असीरी के 25वें बरस के शुरू में और महीने की 10वीं तारीख को जो शहर की तस्खीर का 14वां बरस था, उसी दिन खुदावंद का हाथ मुझ पर था और वो मुझे वहां ले गया। वो मुझे खुदा की रोयतों में इस्राएल के मुल्क में ले गया और उसने मुझे एक नहायत बुलंद पहाड़ पर उतारा और उसी पर जनूब की तरफ गोया एक शहर का सा नक्शा था। और वो मुझे वहां ले गया तो क्या देखता हूं कि एक शख्स है जिसकी झलक पीतल की सी है और वो सन की डोरी और पैमाइश का सरकंडा हाथ में लिए फाटक पर खड़ा है। और उस शख्स ने मुझे कहा, ए आदमजाद, अपनी आंखों से देख और कानों से सुन और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊं उस सब पर खूब गौर कर, क्योंकि तू इसीलिए यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं ये सब कुछ तुझे दिखाऊं। बस जो कुछ तू देखता है बनी इस्राएल से बयान कर। बच्चों, खुदा हिजकिय्याल को इस वक्त हजारों मील दूर इस्राएल में ले आया, मगर ये मुस्तकबिल का मुल्क इस्राएल था, क्योंकि खुदा हिजकिय्याल को मुस्तकबिल में वाक़या होने वाले हालात दिखा रहा था। इस बार खुदा ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर उतारा। उसके जनूब की समत कुछ इमारतें थीं जो एक शहर का तासर देती थीं। बच्चों, चूंकि ये एक ख्वाब था और ख्वाब में देखी जाने वाली चीजें हो सकता है दुनिया में होने वाली बातों की तरह ना हो, चनांचे यही कहा जा सकता है कि यूं लगा जैसे खुदा चाहता था हिजकिय्याल गौर से देखे, तवज्जो से सुने और हर बात पर ध्यान दे, क्योंकि खुदा की ख्वाहिश थी ये सब कुछ जो वो देखने को है जाकर मनवान इस्राएल के लोगों को बता दे, उन्हें समझा दे। हिजकिय्याल ने क्या देखा? उसका कहना था वहाँ एक शख्स था जिसकी झलक पीतल जैसी थी। वो सन की डोरी और पैमाइश का सरकंडा हाथ में लिए फाटक पर खड़ा था। बाइबल में अक्सर पीतल का जिक्र आया है जो अदालत की अलामत है। सन की डोरी और पैमाइश का सरकंडा फासलों की कमी बेशी नापने के काम आता है। हिजकिय्याल ने ख्वाब में एक आदमी देखा जो हैकल को नाप रहा था। इस हैकल की दीवारें थीं। खुदा ने हिजकिय्याल को दीवारों की ऊंचाई बताई, अंदरूनी सेहन और बैरूनी सेहन भी दिखाया, कुर्बानगाह दिखाई, काहन दिखाए और हैकल की हर लंबाई चौड़ाई बताई। दरअसल खुदा ने हिजकिय्याल को अपने जाहो जलाल से भरपूर नए सिरे से बनाया गया हैकल दिखाया। खुदा ये सब कुछ आखिर क्यों दिखाना और बताना चाहता था? हिजकिय्याल 43 बाब 1 से 5 आयत। फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की तरफ है, और क्या देखता हूँ कि इस्राएल के खुदा का जलाल मशरिक की तरफ से आया और उसकी आवाज से लाब के शोर की सी थी और जमीन उसके जलाल से मुनव्वर हो गई। और ये उस रोया की नुमाइश के मुताबिक था जो मैंने देखी थी। हाँ, उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वक्त देखी थी जब मैं शहर को बर्बाद करने आया था। और ये रोयतें उस रोया की मानिंद थी जो मैंने नहर कबार के किनारा पर देखी थी। तब मैं मुंह के बल गिरा और खुदावंद का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है
हैकल में दाखिल हुआ और रूह ने मुझे उठाकर अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया और क्या देखता हूँ कि हैकल खुदावंद के जलाल से मामूर है। बच्चों, जब हिजकिय्याह ने खुदा के जाहो जलाल को हैकल से उठते देखा, खुदा की पुरजलाल रूह मशरकी दरवाजा से निकली थी और अब जबकि खुदा की रूह हैकल में वापस आई तो भी मशरकी दरवाजा की समझ से ये ख्वाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा जब शहर की बर्बादी के वक्त आया था, जब खुदा की रूह शुमाल मशरकी दरवाजा से हैकल में जाहिर हुई। जमीन उसके नूर से रोशन हो गई और अंदरूनी सहन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। हिजकिय्याह 43 पाप 6 से 7 आयत। और मैंने किसी की आवाज सुनी जो हैकल में से मेरे साथ बातें करता था और एक शख्स मेरे पास खड़ा था और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये मेरी तख्तगाह और मेरे पांव की कुर्सी है जहां मैं बनी इसराइल के दरमियान अबद तक रहूंगा और बनी इसराइल और उनके बादशाह फिर कभी मेरे मुकद्दस नाम को अपनी बदकारी और अपने बादशाहों की लाशों से उनके मरने पर नापाक ना करेंगे। यानी खुदा की रूह हिजकिय्याह से चाहती थी कि वो जाकर लोगों को ये बताए कि हैकल फिर से खुदा के जलाल से मामूर हो जाएगा, क्योंकि ये उसके तख्त का मस्कन था और चूँकि वो हमेशा के लिए इसराइल के दरमियान क़याम करेगा। मगर खुदा ने बड़े दुख से कहा, मैंने काहिनों और उन बुजुर्गों को ये शान दी थी कि अपने आस्ताने मेरे आस्तानों के पास और अपनी चौखटें मेरी चौखटों के पास लगाते, मगर वो इस काबिल ही नहीं थे। बच्चों, आए सुलेमान के बनाए हैकल की अंदरूनी तामीर पर एक निगाह डालते और देखते हैं खुदा क्यों इतना परेशान हुआ। हिजकिय्याह 43 बाब 8 से 9 आयत। क्योंकि वो अपने आस्ताने मेरे आस्तानों के पास और अपनी चौखटें मेरी चौखटों के पास लगाते थे और मेरे और उनके दरमियान सिर्फ एक दीवार थी। उन्होंने अपने इन घिनौने कामों से जो उन्होंने किए मेरे मुकद्दस नाम को नापाक किया, इसलिए मैंने अपने कहर में उनको हलाक किया। बच्चों, खुदा के अहद के संदूक और काहनों के हुजरों के दरमियान सिर्फ एक दीवार थी। वो काहन दीवार के एक तरफ तो खुदा की इबादत करते मगर दीवार की दूसरी जानिब बुतों की पूजा किया करते। चुनांचे खुदा ने हिजकिय्याह से कहा, बस अब वो अपनी बदकारी और अपने बादशाहों की लाशें मुझसे दूर कर दें तो मैं अबद तक उनके दरमियान रहूंगा। बच्चों, खुदा का कहना था, उसने काहनों को इज्जत बख्शी, इसीलिए उसके खादमों के हुजरे खुदा के मस्कन से मुत्तसिल थे। उनके दरमियान महज एक दीवार थी। उनकी गुजरगाह खुदा की राहों के साथ थी। उनके दरवाजों की चौखटें खुदा की राहों के पास थीं, मगर उन्होंने खुदा के हैकल की दीवारें बुतों के बेहुदा नकूश से ढांक दी। वो सूरज को सजदा करने और बुतों के सामने खुशबुएं सुलगाने लगे। चुनांचे खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि वो चाहता है जब दोबारा लौटकर अपने जलाली मस्कन की तरफ आए तो ये सरकश काहन वहाँ नजर न आए। खुदा ने कहा,
हिजकिय्याल 44 बाब 6 आयत। اے بنی اسرائیل، تم اپنی تمام مکروہات کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ بچوں، خدا ہیکل پر اپنا جاہو جلال پھر سے قائم کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ خدا کون کون سی نعمتیں اور برکتیں دینے کو ہے؟ بچوں، سلیمان کا بنایا ہیکل تو تباہ ہو گیا، مگر خدا نے حزقیال کو نئے ہیکل کی شان و شوکت دکھائی۔ نئے ہیکل اور پرانے ہیکل میں کیا فرق ہے؟ زندگی کا دریا، حزقیال 47 باب 2، 7، 9 اور 12 آیت۔ تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق رویا پھاٹک پر، اور کیا دیکھتا ہوں کہ داہنی طرف سے پانی جاری ہے، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا۔ پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے، اور ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ بچوں، اس خواب میں خدا نے حزقیال کو ہیکل سے زندگی کا دریا بہتا دکھایا۔ اس کا پانی ہر طرح کی حیات کو توانائی پہنچا رہا تھا۔ بچوں، یہ اس ابدی سلطنت کا نظارہ تھا جہاں یسوع شہنشاہ ہوگا۔ خدا نے حزقیال سے کہا، کیونکہ تو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تجھے دکھاؤں، پس جو کچھ تو دیکھتا ہے بنی اسرائیل سے بیان کر۔ خدا لوگوں کی ہمت بڑھانی چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ اس نے لوگوں سے منہ نہیں موڑا۔ خدا ان کی شان اور بڑھائے گا، انہیں امیدوں سے ہمکنار کرے گا۔ وہ دیکھیں گے خدا نے ان کی آنے والی زندگی کے لیے کیسی شاندار جگہ تیار کر رکھی ہے، مگر ساتھ ہی خدا نے سرکش اسرائیلیوں کے لیے اعلان کر دیا، اے بنی اسرائیل، تم اپنی تمام مکروہات کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ جب ہم خدا کے دیے سبق سیکھتے ہیں اور بائبل سے تربیت پاتے ہیں، دراصل ہم زندگی کے دریا سے پانی پی رہے ہوتے اور زندگی کے درخت کا پھل کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا کہنا ہے اس کا کلام زندگی ہے۔ اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں خدا کا کلام نہیں سنیں گے، اس پر خوب غور نہیں کریں گے، دنیاوی زندگی میں خدا کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تب ہمارے ہاتھ موقع ہی نہیں آئے گا کہ آسمان پر نئی حیات کے مزے لیں، حیات ابدی کی بہتی ندی سے سیراب ہوں، زندگی کے درخت کا پھل کھائیں اور خدا کے ساتھ میں حیات ابدی کا لطف پائیں۔
हमारी जमीनी जिंदगी के तौर तरीकों के मुताबिक हमारी ख्वाहिशों और हर चाल चलन की मुनासबत से खुदा हमारे अबदी ठिकाने की हदूद मुतय्यन करेगा। आए दुआ करें। प्यारे बाप, आज की कहानी सुनने के बाद मुझे यूं लगा अगरचे तू बड़ी आलीशानो शौकत का मालिक है, फिर भी तेरे लोग तेरी ताज़ीम और तकरीम के मायने ना समझे तो तेरा दिल दुखी और बेचैन हो जाता है। तुझे अपने लोगों के बीच रहना पसंद है, बिल्कुल उन वालिदैन की तरह जो अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। प्यारे बाप, मैं समझता था इतनी अजीम ताकतों कुदरत का मालिक खुदा होना के कोई भी सामना करने की जुर्रत ना रखता हो। बड़े ही मजे की बात है, मगर इस सारी ताकत और कुदरत के बावजूद तू अजीम जाहो जलाल और रहम का लामहदूद खजाना है। तू अब्राहम के साथ अपने अहद की वजह से अपने लोगों पर शफकत किए बिना रह ही नहीं सकता। प्यारे बाप, तू कितना ग्रेट है। इस्राएल के लोग तेरे आगे अकड़ते रहे और तुझे तेरे जाहो जलाल समेत शहरे मुकद्दस से रुखसत कर दिया, मगर तूने फिर भी हिजकिय्याल को अपनी वापसी का इरादा और अंदाज दिखाया। तू अपने लोगों को आबे हयात की नदी से सैराब करेगा और जिंदगी के दरख्त से फल खिलाएगा। प्यारे बाप, उस्ताद ने बताया है कि अगर हम इस वक्त तेरे कलाम से मोहब्बत नहीं रखेंगे तो हमें आसमान पर आबे हयात की नदी से सैराबी का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा कलाम ही तो असल जिंदगी है। प्यारे बाप, मुझे डर है कहीं मैं भी उन बुत परस्तों जैसा तो नहीं जिन्हें हिजकिय्याल ने देखा था, जो लोगों की निगाह में बज़ाहिर तो बड़े खुदा परस्त थे, मगर बातिन में चोरी चोरी तेरे आगे सरकशी करते रहे। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा कि तेरा नाम लेकर अच्छाई और वफादारी में फरेबकारी ना करूं। मैं वाकई तेरी दिल शिकनी नहीं चाहता। प्यारे बाप, आई लव यू। मैं तेरा अच्छा बच्चा कहलाना चाहता हूँ। यीशु के नाम में ये मेरी दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। मेरी आँखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। ज़बूर 119:37 आयत।